farmers of all over the India, basically Punjab, Haryana. In against the three laws, they start hesitation. These three laws are consecutively, you understand, you are aware of this. Basically, the farmers produce trade and commerce promotion and the facilitation bill 2020, farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm service act 2020, essential commodities amendment act 2020. Against these three laws, basically these laws are made to suppress the farmers community, and they have bound to give the MSP under one bindness, and against of this, and the police case, several police cases are pending here. So these three rules are anti-farmers. So farmers come to the street, and against the Delhi Chalo program they have already started. Our support is with them, is because the farmers are the main production of the country, and they are the 70% of the total home ground production by farmers. So ultimately, without the farmers, we cannot sustain our livelihood, or we cannot provide our foods, basically food. That's why their demand is very genuine. MSP should be provided, and second is the loan and debt should be waived from the farmers, and third is all police cases should be withdrawn against these farmers, and if any controversy created among the traders and the farmers, then it should come under the judiciary, not to the SDM. So SDM should not be preferred, judiciary should be preferred. So our motto is very clear that we are supporting these farmers' agitations. We are very hopeful. The fourth round discussion is going on. Mr. Piyush Goyal is there, and Piyush Goyal is there, Arjun Munda is there, and another is Nityananda Rai. Three ministers, three ministers of union is sitting with the farmers today. We expect the decision in favor of the farmers, and they also another demand, that is they have demanded, that is the pension for the farmers and the labor of the farmhouses. I think these are the very important demands. They should be fulfilled by the government of India, and farmers should be protected. Previously also we saw that farmers were protesting and they were promised about a minimum support price. But then again they had to do this protest, and again everything is repeating, as we can see. And also along with that, elections are ahead. Don't you think this will impact BJP particularly the ruling government, because of the earlier promises that were not fulfilled to the farmers? No, actually earlier they have promises to the farmers various issues, but the government is not fulfilling these issues. That's why the farmers again come to the Delhi Chalo program, and they started the hesitation just before the declaration of the election. I think it's ultimately the farmers. I think it's in the right time, in the right demand. Because farmers is not protected, and nobody is protected. So for their protection, for their benefit, the farmers' protection, they have hesitated. I think it's a very good on time and very good demand they have raised on time, and that's why our support, we extended our wholeheartedly support in favor of the farmers. देखिए अभी हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि असम का जो पॉलिटिक्स अभी जो हो रहा है, सिर्फ असम का नहीं है, काल सारा इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि फिर कमलनाथ इज गोइंग टू बी बीजेपी, ऐसा बात हम लोग सुन रहे हैं कि न्यूज़ में आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसा देख रहे हैं कि प्रो बीजेपी हो रहा है बहुत जगह, सारा जगह। फिर केजरीवाल ने भी बोला है कि वसुंधरा राजे एंड आई फॉरगेट द नेम, Vasundhara Raje and the ex-chief minister of the Rajasthan, they are also come to the other party, form a new party. So ultimately erosion and is going on everywhere. But in case of Assam के बारे में जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ में पहले 3-4 विधायक इन लोग से हट के चला गया। इसमें एक दो मुस्लिम भी है, एक दो हिंदू आदमी भी है, अदर कास्ट भी है। अभी भी हम लोग देखें कि 2 मेजर वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द APCC, कमलाख्य प्रकाश और बसंत दास, एक्स मिनिस्टर ऑफ द कांग्रेस, इज ए सीनियर लीडर। ये जो खुलेआम मुख्यमंत्री को साथ देना, जो शशिदास मॉडल मैंने बोला इसके बारे में,
मैंने ये टर्म यूज किया सूसी मॉडल, दैट मीन्स डायरेक्टली पार्टी में नहीं छोड़ता है, डायरेक्टली पार्टी में ज्वाइन भी नहीं करता है, तो एक्सटेंडेड करता है प्राइम मिनिस्टर और अपने काम के लिए उसको सपोर्ट करता है। इसके बीच में इन लोग को एंटी डिफेक्शन में ला भी नहीं सकते। तो ऐसा फार्मूला वो लोग निकल रहे 20 का रास्ता कि हम पार्टी का साथ में नहीं है, पार्टी का अगेंस्ट में भी नहीं है, ऐसा शो कर रहा है। इसलिए अभी एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पोज करना प्रॉब्लम हो गया। और इस तरफ से बाकी कुछ लीडर्स भी जो स्टेटमेंट आ रहा है कंज्यूमर लास्ट 3-4 डेज, बहुत बुरा हालत है, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो पहले भी हम लोग का शौक था कि कांग्रेस क्लोज वोटिंग, लास्ट जो राज्यसभा इलेक्शन था, राष्ट्रपति इलेक्शन था और उपराष्ट्रपति इलेक्शन था, इसमें क्रॉस वोटिंग वो लोग किया और पूरा ब्लेम AFDF के ऊपर में डाल रहा था। तो अभी ये बात साफ हो गया कि कौन लोग वोट दिया था, कौन लोग किसके साथ में था, ये बात। और अभी जो होम मिनिस्टर के साथ जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में मुख्यमंत्री करने जा रहा है, वो लोग वन साइडेड गेम शुरू होने से पहले किसी को हरा दिया, ऐसा एक नोशन इंडिया को देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब एक बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, वो इंडिया को ये नोशन देना चाहता है कि हम लोग यहाँ में जितना सीट है, अभी कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है, उन लोगों को खड़ा होने का हिम्मत नहीं है। इलेक्शन से पहले हम लोग उनको हरा दिया, जितना इधर उधर था सब अपना साथ ले लिया, और जो नहीं आया वो उन लोगों के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा है बोल रहा है। ये जो पॉलिटिक्स है, पार्सिस्ट करने वाला जो पॉलिटिक्स है, सारा इंडिया में ये पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, ये पॉलिटिक्स अच्छा नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से एक खराब निशाना है। ऐसा और भी दिख रहा है कि जो हिंदू MLAs हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी की तरफ या AGP जो उनके अलायंस पार्टनर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और उसमें एक आह्वान भी गया है कि अगर जितने भी मुसलमान या माइनॉरिटी MLAs हैं कि उनको AODF के ऊपर आने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे स्पेस नहीं तो आपके पार्टी में ही आ जाए? ऐसा बात नहीं है, कोई कहीं जाने से बात बनेगा बिल्कुल बात नहीं है। तो काल मुख्यमंत्री साहब ने एक बात कहा कि UPPL AGP और हम लोग एक ही है, हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो हम लोग के बिना नहीं रह सकते। दैट मीन्स ईच अदर, बहुत क्लोज है। तो हम लोग बांट करके लेंगे, कोई AGP में लेंगे, किसी को UPP में लेंगे, जो डायरेक्ट पॉपुलेशन पैटर्न सपोर्ट करते उसको BJP में लेंगे। ऐसा फॉर्मूला वो लोग बना लिया। दैट मीन्स कांग्रेस खत्म करने का बात वो लोग कह रहा है। ये मेरा ख्याल से इतना एक पुराना दौर है, इतना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम में कांग्रेस का सबसे ज्यादा टाइम में वो लोग पावर में था। इस दल ऐसा जो सरेंडर एटीट्यूड लाया है और इलेक्शन के पहले जस्ट 1-2 महीने पहले ऐसा जो कार्रवाई किया है, जो एक्टिविटीज किया है, ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत बुरा है। उसी के साथ हम और एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। अभी आपने हिमंता बिश्व शर्मा के बारे में बताया कि वो बहुत अभिज्ञ एक पॉलिटिशियन है, उनको बहुत सारी बातें पता भी है। हमने देखा है कि इलेक्शंस के पहले अभी वो UCC और एंटी पॉलीगैमी के बारे में भी उन्होंने बात किया है, जिसे उत्तराखंड में लाया गया है। उन्होंने बोला है कि उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है, शायद इसी असेंबली में टेबल किया जाएगा। आपका उस पर क्या बोलना है? देखिए, ये अच्छा तरह से जानता है वोट कैसा पोलराइजेशन करना है। वो लोग जानता है कि यहाँ में 34% वोट, 35% वोट जो है उन लोगों के फेवर में आएंगे नहीं। तो इसलिए ये लोग को डायरेक्ट धर्म का ऊपर में, जात का ऊपर में कोई ऐसा इशू खड़ा करो, ऐसा मुद्दा खड़ा करो जिस मुद्दे पे वोट को डिवीजन हो जाए और मेजोरिटी कम्युनिटी इनके सपोर्ट में आ जाए। पहले भी ये लोग बहुत सारे ऐसा बिल्स लाया था, कैटल प्रोटेक्शन बिल, दैट मीन्स साइल प्रोटेक्शन, हाँ वो जो बिल था, ये सब जो बिल था, ये सब बिल भी इसी पर्पस में थे। और राज्यसभा से पहले UCC के बारे में जो बिल के बारे में बात कर रहा है, जब अगर स्टेट वाइज होगा तो UCC कैसा होगा? अगर ये एक डाइवर्सिटी, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना पॉपुलेशन, जात पात का कंट्री है, अपना कस्टम्स, अपना क्रीड है, अपना जो ट्रेडिशन है, इसका ऊपर में कैसे ये लोग UCC लाएगा? तो स्टेट वाइज UCC लाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो स्टेट वाइज UCC लाएगा, फिर बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ में ट्राइबल कम्युनिटी को छोड़ के करेगा। ये सब लॉ ऐसा नहीं होगा। लॉ होना है तो अल्टीमेटली इट इज अगेंस्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 विल बी वायलेट। अगर लॉ बनाना है तो मदर जो पेरेंट लॉ ऑफ द लैंड, मदर लॉ ऑफ द लैंड, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। वो लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ये जा रहा है। तो मेरा ख्याल से ये जो वो लोग कर रहा है, ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रहा है और इलेक्शन ओरिएंटेड ये सब लॉ ला रहा है। लेकिन देखते हैं, पहले टेबलेशन होने दीजिए, उसका बाद इसके ऊपर में टिप्पणी करेंगे।
Thank